टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 12 टर्किश इन्वेजन इन साउथ इंडिया. सो बेटे हम पहले इस चैप्टर को रीड कर लेंगे पूरा. द चैप्टर इज अबाउट 1, 2 and 3 पेजेस. देन आई विल एक्सप्लेन यू. सो लेट्स डोंट वेट द टाइम. हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से. ठीक है, हम सिर्फ रीड करेंगे, समझाना कुछ नहीं है. अभी समझाऊंगी मैं आपको अपने खुद के वर्ड्स में. ठीक है. Many small kingdoms emerged powerful in different parts of India, but their rule was limited to specific regions, though they constantly aspired to expand their boundaries. The frequent wars among the Rajputs resulted in political disunity in North India. This attracted invasions by the Turks. Abazadi cliffs of Baghdad recruited the Turks as guards and professional soldiers. By the end of the 9th century, the power of Caliph weakened. Turks slowly took over the power and became governor of the provinces. Some of them asserted their independence from Caliph. One governor who conquered Ghazni in Afghanistan started a new lineage of rulers known as Ghaznawis. Muhammad Ghazni was born in 971 CE. He ascended the throne in 998 CE. He decided to invade northwest India, where the Gujara Pratihara Empire had become weak due to frequent battles with Palwa and Rashtrakuta. Muhammad Ghazni invaded India 17 times in 27 years. He wanted to make Ghazni a small, hilly and poor region into a powerful empire. He gained the control of Afghanistan and Khorasan. He was attracted by the great wealth of India, so he started plundering towns and temples in North India. He liked Nagarkot, Denasar, Mathura and Kannauj. His most destructive attack was directed against Somnath Temple in 1025 CE. The temple is situated on the sea coast of Gujarat. Rajput warriors put to stiff resistance, but they lost battle. ठीक है, but they lost battle. Muhammad broke the idol of Somnath and looted property worth 20 million rupees. Some historians are the opinion that our main objective of Muhammad Ghazni was to propagate Islam and gain popularity among Muslims. Muhammad invasion exposed the weakness of Indian rulers and paved the way for the establishment of Muslim rule in India. Trade interest also attracted many Muslims to settle in this period and also saw the development of close cultural interaction between India and Islamic Central Asia. But Muhammad's destruction of valuable artistic temples and idols were the great loss to the heritage. Do you know, Muhammad Ghazni is remembered as a plunderer of towns and temples in India, but in his own country, he remembered as a great builder of beautiful mosques, palaces, and libraries. Firdousi, a famous poet, wrote Sahnama, in which he praised the steps Muhammad Ghazni took to propagate Islam and to build up Ghazni at a great empire. He also entrusted Al-Bruni to write an account of the Indian subcontinent known as Kitab-il-Hind. Page number is 92 here. Muhammad Ghori was the ruler of small kingdom of Ghor in Afghanistan. He conquered Ghazni. He placed it under the charge of his brother and decided to turn his attention towards India to expand his empire. Unlike Muhammad Ghazni, whose main aim was invading India, was to loot the great wealth of India. The credit to founding Muslim empire in India goes to Muhammad Ghori. He occupied Peshawar, Lahore and Sindh. He was defeated in the first battle of Tarin by Prithviraj Chauhan, but was victorious in the second battle of Tarin and took over Delhi and Ajmer. His dream of establishing an Islamic empire would have been incomplete without conquering Kannauj. A fierce battle took place between the Muslim and Rajputs. The power of Rajputs were crushed. King Jayachand was defeated and Muhammad Ghori occupied Kannauj and Banaras. Muhammad Ghori did not have a child of his own. He put his territory under the charge. He trusted slave and General Qutbuddin Aibak. The disunity among rulers and the caste system were main causes of success of Ghori and defeated the Indian rulers. The common people were dissatisfied as they have no contact with the local rulers. Moreover, the feudal system. Some Rajput rulers helped the Turks against their own country. Moreover, the feudal system where landowners were very powerful, weakened the power of kings. Ghori planned the Muslim armies moved swiftly on horses as compared to the armies of Indian rulers that used old methods of wars, equipment and elephants. The elephants were not too much help during the war as many a times they turned their worth on their own forces. Do you know, except for conquering Gujarat, Ghori was successful in every invasion. King Bhimdev gave him such a crushing defeat that Ghori could not dream of peeping into Gujarat again. So now we are done with the whole chapter. अभी मैं आपको इसको जस्ट समझाने वाली हूँ. 6 मिनट्स में हमने सारा चैप्टर रीड कर लिया है. अभी हम बस आपको इसको समझाएंगे. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं आपको समझाना. राइट, अब देखो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है. हमने इसमें थोड़ा सा स्टोरी टाइम ले लो चैप्टर को. चैप्टर नंबर 12 समरी. मैं इसको एज अ समरी ले रही हूँ. मैं आपको इसको समरी के टाइप में समझा रही हूँ. ठीक है, सो चैप्टर 12 समरी करते हैं. ठीक है, देखो मैंने ना हर चैप्टर कह रही हूँ, हर पेज में से मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहले पेज नंबर वाइज समझा रही हूँ. पहले 90 में 91 मैं ऑल ओवर द चैप्टर समझा रही हूँ. ठीक है, आपको साथ में सारा समझ आ जाएगा. सबसे पहले हम टर्क्स की थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि पूरे चैप्टर में टर्क्स की बात बहुत ज़्यादा करी गई है. ये देखो टर्क्स. अब टर्क्स जो थे वो कैसे अट्रैक्ट हुए थे इंडिया में, हम पहले ये बताएंगे. वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, पॉलिटिकल डिसयूनिटी की वजह से नॉर्थ इंडिया में फ्रीक्वेंट वॉर्स होती थी राजपूत्स के बीच में. फ्रीक्वेंट वॉर्स होती थी किनके बीच में? राजपूत्स के बीच में
हो गई वर्ड्स। ये सब चीज़ों ने अट्रैक्ट किया टर्क्स को, अट्रैक्टेड टर्क्स इन इंडिया, इंडिया में टर्क्स को इन्होंने अट्रैक्ट किया। एक तो पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, फिर फ्रीक्वेंट वॉर्स होती थी राजपूत के बीच में, तो इसलिए अट्रैक्ट हो गए क्या, टर्क्स हो गए इंडिया में अट्रैक्ट। अब टर्क्स के दो फीचर्स क्या हैं। टर्क जो थे टर्क्स प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, ठीक है। टर्क्स जो थे प्रोफेशनल सोल्जर्स थे, उन्होंने अपनी एक्सपेंड करी थी बाउंड्री, उन्होंने बाउंड्री को एक्सपेंड किया था क्या करके, इंडिया के प्रोविंस को ऑक्यूपाई किया। थर्ड वो कहते, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। कहते कि मोहम्मद गजनी जो था उसने अपनी पावर को एक्सटेंड कैसे किया था। तो सबसे पहले जो गजनी था ना, उसने कॉन्कर किया था गजनी को। मोहम्मद गजनी ने कॉन्कर किया गजनी, जो कि था कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में। ये सब कुछ जो है बेटे अब यहाँ से जो है ना सारा 92 91 पेज नंबर वाला, ठीक है, सारा कुछ पूरा पैराग्राफ यहाँ से समझा रही हूँ मैं, ठीक है। फिर वो कहते कि जो गजनी था उसने, फिर वो कहते कि जो गजनी था ना उसने 17 टाइम्स 27 ईयर्स में अटैक किया था इंडिया को। समझ आया। अब थर्ड देखो, वो कहते कि उसने गेन किया कंट्रोल किसमें, अफ़गानिस्तान में, और खुरासन को। उसने कंट्रोल गेन किया अफ़गानिस्तान में और खुरासन में। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे मैं दिखाऊंगी, उसने जो है गजनी ने अटैक किया टेम्पल्स पे और टाउन्स में जो कि इंडिया में है, जैसे कि नगरकोट, देनासर, मथुरा एट्सेट्रा, ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका मोस्ट डेंजरस जो था अटैक, डेंजरस अटैक जो उसने किया था वो अगेंस्ट सोमनाथ टेम्पल था। सोमनाथ टेम्पल के अगेंस्ट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मोस्ट डेंजरस अटैक किया था उसने 1025 CE में एट सी कोस्ट गुजरात के, ठीक है। वो कहते हैं कि फिर लास्ट में उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि राजपूत जो थे, राजपूत वॉरियर्स जो थे, उन्होंने ग्रेट स्टिफ रेजिस्टेंस पाई, बट दे लॉस्ट द बैटल, पर वो बैटल पे हार गए, ठीक है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अब मोहम्मद गजनी ने क्यों अटैक किया था। हमने ये देख लिया कि उसने अटैक किया है 17 टाइम्स 27 ईयर्स में। अब भाई उसने अटैक किया क्यों, उसको हमसे कोई दुश्मनी थी, उसने इसलिए अटैक किया कि कोई और ही बात थी। अब हम ये पढ़ेंगे कि उसने अटैक किया क्यों। देखो थोड़ा सा समझते हैं, उसने अटैक क्यों किया। सबसे पहले तो वो चाहता था कि गजनी जो था पहले एक स्मॉल हिली और पुअर रीजन था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी, गजनी जो था एक स्मॉल हिली और पुअर रीजन था, और अब उसको वो टर्न करना चाहता था एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग एम्पायर में, टर्न करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू टेक द वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ, वो बहुत ज़्यादा वास्ट वेल्थ जो कि इंडिया में थी, वो उसको लेना चाहता था, टेक करना चाहता था, वॉन्ट टू टेक, लेना चाहता था, ठीक है, जो वास्ट वेल्थ इंडिया में थी। थर्ड पॉइंट, वो चाहता था पॉपुलर होना, ही वॉन्ट टू बिकम पॉपुलर होना चाहता था मुस्लिम्स में। कैसे पॉपुलर होना चाहता था, इस्लाम को स्प्रेड करके पॉपुलर होना चाहता था अमंग मुस्लिम्स। फिर वो कहते हैं नेक्स्ट, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये भी, वो कहते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हुए मोहम्मद गजनी के आने पर, क्या क्या इफ़ेक्ट हुए थे, ये भी 91 पेज नंबर पे ही हमें गिवन है। सबसे पहले तो देखो, जब मोहम्मद गजनी आया था ना, तब इंडिया के रूलर्स जो हैं उनकी वीकनेस एक्सपोज हो गई थी कि वो वीक है, ये एक्सपोज हो गया था, ये वे बन गया था, दिस बिकम अ वे टू मेक देम एंटर इन इंडिया। इंडिया में आने का एक ये वे बन गया था कि चलो रूलर्स तो बहुत इनके वो हैं,
वीक, तो हम कुछ कर नहीं सकते हमारा, तो वो आ गए थे इंडिया में। थर्ड, जो ट्रेड था, ट्रेड की हेल्प से भी जो है बेटे बहुत सारे मुस्लिम जो थे अट्रैक्ट हुए थे। ट्रेड की वजह से मुस्लिम्स जो थे अट्रैक्ट होकर इंडिया में आ गए थे। फोर्थ, बहुत ज़्यादा क्लोज कल्चरल वो था इंटरैक्शन। ये तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये वाला मैं आपको पूरा समझा रही हूँ, ठीक है। वो कहते हैं बहुत क्लोज कल्चरल इंटरैक्शन थी इंडिया के बीच में, एशिया के बीच में, इस्लामिक सेंट्रल एशिया के बीच में, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लोज कल्चरल इंटरैक्शन थी। फिर वो कहते हैं कि मोहम्मद की जो डिस्ट्रक्शन थी वैल्यूएबल आइटम्स की, जो उसमें वैल्यूएबल आइटम्स डिस्ट्रक्ट करी थी, जैसे कि टेम्पल हो गए, टाउन्स हो गए, ये इंडिया के लिए ग्रेट लॉस बना था, ग्रेट लॉस हुआ था इंडिया का इस टाइम। फॉर अस मीन्स इंडियंस, इंडिया के लिए ग्रेट लॉस हुआ था इस टाइम, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 92। अब पेज नंबर 92 पे हमें एक बहुत ही सिंपल सी बात उन्होंने समझाई है। कहते हैं कि क्या रीजंस हैं कि इंडिया जो है वो हार गई। कुछ रीजन होंगे तभी हारी है इंडिया। सबसे पहला जो रीज़न होता है ना कि जो रूलर्स हैं वो रूलर्स यूनाइटेड नहीं थे, रूलर्स में यूनिटी नहीं थी, ठीक है। पहला तो ये हो गया, वो एक दूसरे से वॉर करने में लगे हुए थे। एक दूसरे से वॉर कर रहे थे वो। कॉमन पीपल डिससेटिस्फाइड थे, कॉमन लोग जो थे वो सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था उनका रूलर्स के साथ में, ठीक है। थर्ड, कुछ राजपूत जो थे ना, राजपूत्स, वो हेल्प कर रहे थे टर्क्स को कि आप लोग जो है इंडिया में आ जाओ, अपनी खुद की कंट्री के खिलाफ थे वो। मुस्लिम आर्मीज़ जो थी ना, मुस्लिम आर्मीज़ धीरे धीरे कर स्विफ्टली, मुस्लिम आर्मी स्विफ्टली जो थे वो अपने हॉर्सेस पे आगे बढ़ रहे थे, पर इंडिया की आर्मी ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, इंडियन आर्मी कुछ ऐसा नहीं कर रही थी। फिर कहते हैं कि जो इंडियन थे, इंडियन रूलर्स थे हमारे जो, वो ओल्ड मेथड यूज़ करते थे वॉर्स के, ठीक है, इसलिए जो है इंडिया हारी। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि दोनों ही सेम है। मोहम्मद गजनी जो था वो, उसका एम जो था ना, वो इसका एम ये था कि वो पूरी इंडिया को लूट लेगा, लूट करना उसने वेल्थ को, इंडिया की वेल्थ को लूट करना, और पॉपुलर होना चाहता था वो, मुस्लिम्स के अमंग पॉपुलर होना चाहता था, ठीक है। वेयर एज गौरी जो था, मोहम्मद गौरी, उसका एम था अपनी एक्सपेंड करना, एम्पायर को एक्सपेंड करने का उसका था इरादा कि अपने एम्पायर को एक्सपेंड करूँगा इंडिया की प्रोविंसेस को लेकर, और वो इस्लाम एम्पायर इस्टेब्लिश करना चाहता था, इस्लामिक एम्पायर एक्सपेंड करना चाहता था, इस्टेब्लिश करना चाहता था। आई होप बेटे आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, कुछ ही हमने आपको ईजी वे में समझाया है, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।